16ویں 17ویں سحری اور عوام کے درمیان موجود اور عوام کا والہانہ استقبال 100 تنقیدوں کے باوجود جو کہتے ہیں کہ روک سکو تو روک لو. آج جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر سندھ سحریوں میں کیوں جا رہے ہیں, لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھنا اور گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے بند رکھنا اور وہاں صرف مخصوص لوگوں کو اندر آنے دینا. وہاں تک آپ گورنر بہت اچھے ہیں, لیکن اگر آپ عوام کو گورنر ہاؤس میں بلائیں گے, افطاری کے لیے دروازے کھولیں گے اور سحریوں میں جائیں گے تو ہم آپ پر تنقید کریں گے. آج شہر کراچی میں جو لوگوں نے افطار اور ڈنر کے عوام کے لیے گورنر ہاؤس میں آنے والے جو بینرز لگائے گئے تھے انہیں آج کراچی میں ہٹا دیا گیا ہے. تو میں یہاں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہ میری طرف سے نہیں ہٹایا گیا, بلکہ یہ ایک میسج ہے مجھے کہ اب آپ رک جائیں, بہت ہو گیا عوام. یہ باقاعدہ مجھے تھریٹ دی جا رہی ہے کہ عوام کو اتنا آپ نہ بلائیں اور نہ ملیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بینر آپ نے ہٹائے ہیں ان سے ڈبل کی تعداد میں انشاءاللہ 2 دن میں لگ جائیں گے. آپ ہٹاتے جائیں اور عوام لگاتی جائے گی, کیونکہ یہ 1947 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں نے گورنر ہاؤس اندر آ کر دیکھا ہے, اور صرف اندر آ کے دیکھا نہیں ہے بلکہ جب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو وہاں ان کا گورنر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, گلے ملنا, سیلفی بنانا اور ان کے مسائل کو اسی وقت پوچھ کے اسے حل کرنے کی کوشش کرنا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو شخص بھی گورنر ہاؤس کے نمبر 1366 پر اپنی کمپلین لکھوائے گا, جب وہ فون اٹھے گا تو وہاں سے جواب یہ آئے گا کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں, ہم حل کیسے کر سکتے ہیں. اور جب تک حل نہیں ہوگا وہ فون کال آپ کے پاس آتی رہے گی. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے, میں عوام میں آتا رہوں گا, ان کے درمیان بیٹھتا رہوں گا. ابھی 3 بج رہے ہیں اور یہ کٹی پہاڑی جسے لوگ ڈیفنس سے یہاں آنا ایسا سمجھتے ہیں جیسے علاقہ غیر میں جا رہے ہیں. آج آپ کے سامنے آپ کا یہ عوامی گورنر آپ کے درمیان بیٹھا ہے اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہو رہی تھی. یہ ہمارے جو میڈیا کے کیمرہ مین ہیں ان کو بہت جلدی تھی, ان کی بھی تو ذرا بتاؤں نا. میں یہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی بات ہو اور میں عوام میں سے نکل جاؤں. تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں اور آج دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا ساتھ نہ دیں لیکن تنقید مثبت کریں. ایک شخص جو لوگوں کے درمیان جا رہا ہے, ایک شخص جو لوگوں کے درد اور دکھ کی بات کر رہا ہے, ایک شخص جو شہر ایک کراچی میں مافیاز کی بات کر رہا ہے, ایک شخص للکار رہا ہے ان مافیاز کو جنہیں بڑے بڑے حکمران نہیں توڑ سکے. تو اس پر یہ تنقید کرنا کہ وہ سحری کیوں جا رہا ہے, وہ سحریاں کیوں بانٹ رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں, جب تک میں سحری کھانے جا رہا تھا تو کوئی تنقید نہیں کر رہا تھا. جب 13 سحری سے میں نے اپنے ساتھ 1000 2000 پارسل سحری کے بانٹنے شروع کیے تو آپ گواہ رہیے گا منظر بھائی کہ اس دن سے تنقید شروع ہوئی کہ میں سحری پہ کیوں جا رہا ہوں. تو اگر لوگوں کی بھلائی یا ان کو ریلیف دینے کے نام پر مجھ پہ تنقید کی جا رہی ہے تو جن لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا ان پر کیوں تنقید نہیں کی جا رہی؟ انہوں نے تو نہیں دیے, جبکہ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. میں تو ان کے وعدے نبھا رہا ہوں, اور اس لیے نبھا رہا ہوں, وعدہ کرنے والے کا نبھا نہیں رہا ہوں, میں جن سے وعدے کیے گئے تھے میں وہ وعدہ نبھا رہا ہوں, کیونکہ وہ معصوم لوگوں سے وعدے کیے تھے جو اس پر اعتبار کر بیٹھے تھے. اور مجھے پتا ہے کہ ان کے دل کیسے دکھے ہوئے کہ نہ گھر ملا, نہ نوکری ملی, اور جو ہے وہ
3.5-4 साल आदमी कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं आज ये भी ऐलान करता हूं कि इमरान खान ने जितने वादे अवाम से किए थे, उनकी फलाह बहबूद और उनकी भलाई के, वो सब मैं पूरे करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग कोई चीज हासिल करने के लिए वादा करते हैं कि मैं ये वादा करता हूं तो सुबह मुझे आप गवर्नर बना दें। आप ये भी देखिए कि आज जो शख्स आपसे बात कर रहा है उसे अल्लाह ने गवर्नर बनाया हुआ है, उसके बाद वो ये वादा कर रहा है। ये वो कौन सी एक मिसाल देते हैं ना कि वो, अब खैर गलत हो जाएगा, वो लकड़ी वाली नहीं दे सकते ना, हाँ वो नहीं दे सकते, वरना मैं दूसरी एक मिसाल दे देता भी कि, लेकिन अवाम की खातिर हम करने के लिए तैयार हैं और ये वक्त की और अवाम की जरूरत भी है। मैंने एक बात की कि इस शहर में हमारी बहन बेटियां, इस पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है। मेरी बहनों आज सुन लो, तनकीद सिर्फ एक बात पे हो रही है और कई हमारे जो मीडिया के ग्रुप हैं उसमें तो बहुत हो रही है कि गवर्नर साहब जो है वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं मेहंदियां लगवाऊंगा। अरे भाई, अगर मेरी बहन मेरी बेटी इस महंगाई के तूफान में अपने वालिद या मियां से ये नहीं कह सकती कि तुम पेट्रोल डालो और साथ मुझे चूड़ियां और मेहंदी भी लगवा दो, तो अगर वो गवर्नर हाउस आए अपने भाई, अपने वालिद, अपने मियां के साथ, और अगर वो वहां आके बेहतरीन कराची की, हैदराबाद से चूड़ियों वाले आ रहे हैं सारे, जो पूरे स्टॉल लगाएंगे और मुफ्त मिलेगी, तो तनकीद क्यों हो रही है? अगर इस शहर की माएं, बहनें, बेटियां जो बड़े अरसे से उन्हें कोई तफरीह बात नहीं मिली, जिनके किसी बात पर बात नहीं गई सिवाय वो अपने घर वालों के लिए सिर्फ रोजगार की दुआएं कर रही हैं, पिछले 3-4 सालों से वो सिर्फ गैस आने की दुआएं कर रही हैं, सिर्फ बिजली आ जाए इसकी दुआ कर रही हैं, ऐसे ही है ना? तो अगर उनको एक ऐसी बात इस सूबे के गवर्नर ने कर दी कि आपके लिए चूड़ियां और मेहंदी की बात है, तो इतना तनकीद क्यों हो रही है? क्या कहा है मैंने? फिर उस तनकीद को सुन के मैंने आज एक बात की है कि गवर्नर हाउस में 1366 का नंबर है। मेरी किसी बहन जिसका मियां सहाफी क्यों ना हो, अगर वो उसको तंग करे तो वो मेरी बहन 1366 पे फोन करे, हम सहाफी से भी लड़ जाएंगे। और बोले आप सही है? तो कोई भी शख्स जो हमारी माँ, बहन, बेटियों को तंग करेगा या उनके घर वालों को, तो वो फोन कर सकती हैं। ये उस बात का जवाब है जो मेहंदी पे तनकीद की गई है। और आप जितनी तनकीद करेंगे मैं एक नई बात लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं समझता हूं कि आज इसी लाइटर मूड में रखते हैं बात को। मसाइल सारे आप सबके सामने हैं और कोई नई बात हो, कोई पूछना चाहे तो पूछते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, जो आपने कहा कि गैस के बिल गवर्नर हाउस लेकर आए, उनको जीरो करवाएंगे, तो मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ये तो सिविल नाफरमानी का हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये कब कहा उन्होंने? मैंने किसी सिविल नाफरमानी की बात नहीं की। मैंने मुसद्दिक मलिक साहब अवाम से ये कहा है कि अगर उनके घर गैस आ ही नहीं रही है और सिर्फ बिल आ रहा है, जिसके घर गैस आ रही है और उसका बिल आ रहा है तो वो बिल पे करे। मैंने तो ना नहीं की। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि अगर किसी के घर गैस आ ही नहीं रही, जो लोग मुझे कह रहे हैं, तो फिर बिल भी नहीं आना चाहिए। और फिर मैंने ये कहा कि उन बिलों को लेकर, जब मेरे पास ये सब जमा हो गए, अभी तक 12 से 14 हजार बिल आ गए, तो मैंने एमडी सुई सदरन से कहा है कि आप इन बिलों को जीरो कर दें। मतलब आपने किसी को गैस अगर नहीं दी, तो हमारे यहाँ तो मीटर कंप्यूटराइज है ना, अगर किसी ने इस्तेमाल की होगी तो उसका बिल बनता है। लेकिन जब एक शख्स ये कह रहा है कि मेरे घर गैस आ ही नहीं रही, हमने गैस देखी ही नहीं है, तो फिर बिल जीरो हो जाने में क्या हर्ज है? आवाम को ही फायदा है ना इसका। गवर्नर साहब ये बताइएगा, एक शख्स शेरवानी पहनने के लिए बेताब घूम रहा है, कराची का मेयर कब बनेगा, वो क्या होगा, कब तक उसकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, उसका ये बताइएगा जिस जगह पर आप बैठे हैं। यार देखो, आप वो मेरे दोस्त हैं, आप मुझसे सख्त लफ्ज ना कहलाओ, लेकिन जिस दिन वो मुनाफकत खत्म कर देंगे उसी दिन सुबह मेयर होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अच्छे आदमी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। लेकिन मसला ये है कि वो रात में मुझसे इतनी अच्छी तरह मिलते हैं और बगलगीर होते हैं और इतना मुस्कुराते हैं कि मैंने तो उनसे मुस्कुराना सीखा है। लेकिन सुबह आप लोग बताते हैं कि यार
हाफिज नईम साहब ने ये कह दिया, हाफिज नईम साहब ने ये कह दिया, तो अब आप ये मुनाफिकत वाली बातें ना करें, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मैं सवाल मेरा ये था कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो उस रेस्टोरेंट को सिस्टम जो फूड अथॉरिटी वाले हैं उन्होंने इतना निशाना बनाया हुआ है कि 2-2 बार 3-3 बार इनके ऊपर जुर्माने कर दिए गए और उसके बावजूद अभी भी इनके ऊपर जुर्माना करने की बात हो रही है। ये फूड अथॉरिटी को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? सिस्टम हर जगह इतना राइज हो गया कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि खामोशी जो होती है ना वो सबसे बड़ा जुर्म होती है। ये तो पूरे शहर का अलमिया है ना, जो अच्छा काम करता है उसे आप एक नोटिस भेज दें, अगर कहीं खराबी है तो उसको ठीक भी होना चाहिए। देखिए, मैं किसी की भी बुराई या खराबी या ऐसी बात को कभी डिफेंड नहीं करूंगा जो आइन और कानून से बालातर हो। जाहिर है मैं एक आइनी सूबे का सरबराह हूं, तो आइन और कानून का एहतराम तो मुझ पर भी है और मैंने औरों से भी कराना है, लेकिन नाजायज किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर इनको नाजायज तंग किया जा रहा है तो ये ज्यादती है और नहीं होनी चाहिए। और साहब, कौन सी कुव्वतें आपसे खौफजदा हो गई हैं, परेशान हो गई हैं? बैनर फ्लैक्स क्यों फाड़े जा रहे हैं? कौन सी कुव्वतें जो आपके पीछे लग गई हैं, आपको रोकना चाहती हैं? ये वो कुव्वतें हैं, अभी मैं पूरी तरतीब देख रहा हूँ, 3 बयान मैंने दिए हैं, जिसके बाद 12-13 रमजान तक कोई तनकीद नहीं थी, बल्कि सब तारीफें कर रहे थे। एक बात मैंने ये की कि इस शहर कराची में या इस पाकिस्तान में अमीरों ने पाकिस्तान को गरीब बना दिया है, और अगर इस पाकिस्तान को अब अगर अमीर बनाना है तो हमें अपने मिडिल क्लास गरीब लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा, और वो अमीर तब बनेंगे जब उनके बच्चे भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे। जिस दिन से मैंने ये बयान दिया है तो उसको लोगों ने बड़ा सराहा है और उसके बाद ही तनकीद शुरू की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे ये तो अंदाजा हो गया है, जो आपका सवाल था, कि जो लोग आवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं लाना चाहते, आवाम को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, सिर्फ उसको इतना ही हक देंगे कि वो उन्हें वोट दे बस, और सिर्फ अपने रोजाना की जिंदगी की बात करे, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स उनकी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहता है, उनकी जिंदगी बदलना चाहता है, और वो ये चाहता है कि उनकी जिंदगी में भी खुशहाली हो, उनके बच्चे भी पढ़ें, उनके बच्चे भी बाहर मुल्कों में जाएं, और उनको भी वही मौके मिले जो एक बड़ी गाड़ी में बैठने वाले और बड़े घर के बंदे और एक वजीर और वज़रा को हासिल है। तो मैं समझता हूं कि मुझे तनकीद तो आएगी, लेकिन अब एक बेड़ा उठा लिया है, और उठाया सिर्फ इसलिए है कि लोगों ने इसको सराहा है। यहाँ ये जितने लोग खड़े हैं, मेरा अल्लाह जानता है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन जिस मोहब्बत से इस भाई ने बात की, इन्होंने बात की, तो मैं ये समझता हूं कि ये वो आवाज है जो अब उठ रही है, और इस आवाज के साथ मैं खड़ा हूं इंशाअल्लाह।